गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदर्श सिटी कन्वेंट स्कूल ककूर, क्लास 10th। नेम ऑफ द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्वेश्चन आंसर ऑफ 3 up to 3 chapters were already written, so no need of writing, and sorry for it. And chapter number 4, a question of trust, विश्वास का एक प्रश्न, and half part of this chapter was taught you that day, and today I will start from page number 22. So open your book at the page number 22. It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. यह बहुत शांत दयालु स्वर था, परंतु इसमें दृढ़ता थी। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी और शैरी उससे अपना शरीर रगड़ रहा था। She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वह युवा और सुंदर थी, लाल ड्रेस पहने थी। वह अंगीठी के पास गई और आभूषण यानी गहने ठीक किए। Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. नीचे उतरो शैरी, उसने कहा। किसी को ये लगेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई थी। She smiled at Horace and went on. वह होरेस को देखकर मुस्कुराई और बोलती रही। However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. पर मैं सही समय पर वापस आ गई, यद्यपि मुझे आशा नहीं थी कि किसी चोर से मेरा मिलना हो जाएगा। Horace had some hope because he seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. होरेस को कुछ आशा बंधी क्योंकि वह उससे मिलकर खुश लगती थी। यदि वह उससे सही ढंग से पेश आए तो मुसीबत से बच सकता है। He replied, I did not expect to meet one of the family. उसने उत्तर दिया, मुझे आशा नहीं थी कि परिवार के एक सदस्य से मैं मिलूंगा। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? उसने सिर हिलाया, उस लेडी ने सिर हिलाया। लगता है मुझसे मिलकर तुम्हें असुविधा हुई है। अब तुम क्या करोगे? Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. होरेस बोला, मैं पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा, और फिर वह संकोचपूर्वक चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला, I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. मैं निश्चित करूँगा कि तुम कुछ समय तक कुछ भी न कर सको। मुझे अपने काम के लिए कुछ घंटे ही पर्याप्त होंगे। She looked at him seriously.
यू हैड हर्ट मी। उसने उसकी ओर गंभीरता से देखा। तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? Horace paused and then said, I think you are trying to frighten you when I said that. होरेस रुका और बोला, मैंने शायद जब ये बात कही तो तुम्हें डराने के लिए। You did not frighten me. तुम मुझे नहीं डरा पाए। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. Horace ने सुझाव दिया, यही ठीक होगा कि तुम भूल जाओ तुमने मुझे कभी देखा था और मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. आवाज़ अचानक तीखी हो गई। क्या जाने दूँ? तुम मुझे लूटने वाले थे। If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. तुम मुझे लूटने वाले थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम किसी और को लूटोगे। समाज को तुम जैसे लोगों से बचाना जरूरी है। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. Horace मुस्कराया, बोला कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए खतरा बनूँ। मैं केवल उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत ही ज़्यादा धन होता है। I steal for a very good reason and I hate the thought of prison. मैं एक नेक काम के लिए चोरी करता हूँ और मुझे जेल के विचार से घृणा होती है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. वह हंस पड़ी और होरेस ने विनती की कि ये सोच करके उसने उसे राजी कर लिया है। देखो, मुझे तुमसे कुछ मांगने का हक तो है नहीं। Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. पर मैं निराश हूँ, मुझे जाने दो और मैं वचन देता हूँ कि मैं इस प्रकार का काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, are not you?" वह उसे ध्यानपूर्वक देखते हुए चुप हो गई। फिर वह बोली, तुम सचमुच ही जेल जाने से डरते हो, क्या ऐसा नहीं है? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वह अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई। मुझे हमेशा ही गलत किस्म के लोग पसंद रहे हैं, उस औरत ने कहा। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, उसने मेज से चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। होरेस उसे खुश करने को तैयार था और देखा कि महिला शायद उसकी मदद कर दे। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अपना दस्ताना उतारा और उसे अपना सिगरेट लाइटर भी दे दिया। You will let me go. He held the lighter towards her.
तुम मुझे जाने दोगे? ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, उसकी ओर लाइटर को उसने उसकी ओर लाइटर पकड़ते हुए कहा, यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ, परंतु केवल यदि आप मेरे लिए कुछ काम करेंगे तब। एनीथिंग यू से, आप कुछ के कहिए। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक, बट I left them here in the safe. I want to wear them to party tonight, so I came down to get them, but लंदन रवाना होने से पहले मैंने अपने पति से वायदा किया था कि मैं अपने गहने अपने बैंक में जमा कर दूंगी, पर मैंने तिजोरी में ही छोड़ गई। आज रात मैं इन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसीलिए इन्हें लेने के लिए आई हूँ। होरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू? होरेस मुस्कुराया और कहा कि आप वो नंबर आप भूल गई हैं जिनसे ये अलमारी खुलती है। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, उस औरत ने उत्तर दिया, हाँ ऐसा ही है। जस्ट लीव टू इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। ये सब मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे में तुम्हें वे गहने मिल जाएंगे, पर मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड विल नॉट बी here for a month and I will have the safe mended by that time. उसकी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे और उस समय तक मैं तिजोरी को ठीक करा लूँगी। And within an hour Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे में होरेस ने तिजोरी खोल दी, उसे गहने सौंप दिए और खुशी से वहाँ चल दिया। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady on the morning of the 3rd day. However, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. 2 दिन तक उसने उस दयालु महिला को दिया हुआ वचन याद रखा, पर 30 दिन प्रातः ही जब उसे अपनी चहेती पुस्तकों की याद आई तो उसे लगा कि उसे कोई और तिजोरी तलाशनी पड़ेगी, पर उसे अपनी योजना शुरू करने का मौका ही नहीं मिला। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सूटोवर ग्रेंज। उसे मौका मिला ही नहीं और दोपहर तक एक सिपाही ने उसे सॉफ्टवेयर ग्रेंज में गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, वर ऑल ओवर द रूम एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। उसकी उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्ताने के खोला था। पूरे कमरे में, सारे कमरे में उसके निशान थे और किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब उसने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने ही उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. नॉनसेंस वगैरह हो गया, आगे बढ़ाओगे स्टार्ट। तो उसने ये कहा कि मुझे तिजोरी खोलने के लिए तो उस घर की औरत ने कहा था, पत्नी जो एक सफ़ेद बालों वाली थी
और करीब 60 साल की उम्र की महिला थी और बोली कि ये कहानी तो बकवास है। वो बोली होरेस नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चैंटिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। होरेस अब जेल में सहायक लाइब्रेरियन है। वह प्राय सुंदर युवा चतुर औरत के बारे में सोचता है जो उसी के धंधे में थी और जिसने उसे मूर्ख बना दिया था। And who tricked him? He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. उसे बहुत क्रोध आया जब कोई चोरों में ईमानदारी की बात करता है। यानी होरेस को बहुत क्रोध आता है जब कोई चोरों के बीच भी ईमानदारी की बात करता है। तो चैप्टर इज कंप्लीट एंड रीड एट योर होम एंड द रेस्ट tomorrow. Thank you.